Good morning, everyone. So, welcome back to your own channel that is We Are in Techno World. Okay, so in this lecture, I'm going to tell you about protocols. Like, what do you mean by protocols? And what is the need of protocols in the field of data communication and network? So, with the help of this lecture, you would get to know about the elements of protocols and what are the needs of it. All right, so let's move on. First of all, what do you mean by protocol? So protocols क्या होते हैं? These are basically the set of rules that govern the data communication. That means like network protocols क्या हैं? These are the set of guidelines which are governing the exchange of information within the computer network in a simple and dependable as well as you could say in a secure way. ठीक है? तो प्रोटोकॉल्स को हम क्यों यूज करते हैं? Like so that within the computer network we could control the congestion. All right, so for that purpose protocols are used. Okay, so like in the other definition you could say like protocols are actually defined as a communication standard followed by both the parties, means whether it is sender or receiver within the computer network. तो like प्रोटोकॉल्स की हमें ज़रूरत क्यों है? So that in the effective manner we could send and receive the information on various devices on both of the side, like from the sender and the receiver. So for that purpose this protocol is used. Okay, now these network protocols are the formal standards and policies which are comprised of rules, methodology, and configurations that define the communication between two or more devices. देखिए इसको आप ऐसे समझिए, लेट अस सपोज जब हम रोड पे निकलते हैं, ठीक है, तो लाइक विद द हेल्प ऑफ वन कार you could go only on one direction or only on one route you could go or you could move with the help of that vehicle. All right, but जब आप मैसेज सेंड करने की बात कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ योर स्मार्टफोन, तो एट वन सिंगल टाइम we could send the message, we could broadcast that message to many devices or to many receivers. All right, so now you could assume like in computer network we are having lots of congestions behind the background. All right, so for controlling that congestion, because if one person is sending the message to 50 persons, then let us assume we are having around like how much population we are having in all over the world, around billions of population we are having. So if one person is sending 50 messages at one time, then billions of people if send the like 50 messages to everyone, then it would be like lots of congestion would be there in the background. So there is like you could say a very much congestion in the background. So to control that or like for governing, and you could say to control that congestion, we need these protocols. All right, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. What are the names of protocol? Because देखिए प्रोटोकॉल हमारे पास हर एक टाइप पे है. लेट अस सपोज हम जब लेयर्स की बात करते हैं, ओसाई मॉडल में वी आर हैविंग 7 लेयर्स, राइट? तो फिजिकल लेयर भी हमारे पास है, नेटवर्क लेयर है, डेटा लिंक लेयर है. इस तरीके से लॉट्स ऑफ लेयर्स वी आर हैविंग. ऑलराइट, तो जब आपको मेल करना है तो वी आर हैविंग वन डेडिकेटेड प्रोटोकॉल दैट इज एसएमटीपी प्रोटोकॉल. जब आपको कोई फाइल अटैच करनी है, सो एट दैट टाइम एफटीपी प्रोटोकॉल गेट एक्टिवेटेड. सो जस्ट लाइक दैट हमारे पास हर एक फंक्शन को करने के लिए एक डेडिकेटेड प्रोटोकॉल क्या है, डिसाइडेड है. सो लेट्स चेक इट. देखिएगा आप, एच प्रोटोकॉल, ये है प्रोटोकॉल का नाम, और इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. बट व्हाट आर द यूजेस ऑफ इट? जब भी आप वेब ब्राउजिंग करते हैं, सो एट दैट टाइम लाइक दिस एच प्रोटोकॉल गेट्स एक्टिवेटेड, और सभी ने देखा होगा.
so there is no problem. Okay, now the second one is HTTPS, means it's secure HTTP connection. So it is used for secure web browsing. Chaliए, now the third one, that is TCP, Transmission Control Protocol. This is basically used for reliable data transfer. और ये एक तरह से आपका वायर्ड प्रोटोकॉल है, ठीक है। अच्छा, यूडीपी, ये आपका वायरलेस पे काम करता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इट इज़ वेरी फास्ट एंड लाइक जब आप वीडियो स्ट्रीमिंग करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम दिस यूडीपी प्रोटोकॉल इज यूज्ड। सो डिपेंड्स अपॉन द एप्लीकेशन, एज यू कुड सी कि आपकी एप्लीकेशन के ऊपर सब कुछ डिपेंड कर रहा है कि आप किस तरह का काम परफॉर्म करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट इज आईपी, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है फॉर द एड्रेसिंग एंड राउटिंग पर्पस। ओके, एफटीपी प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जब भी आप फाइल को अपलोड करने की कोशिश करते हैं, डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं, अटैच करने की कोशिश करते हैं, मीन्स वही अपलोडिंग। Alright, so at that time FTP protocol would get activated. Then SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Let us suppose आपको सिर्फ मेल करना है, एक सिंपल मेल, so at that time SMTP protocol is activated. Then IMAP protocol, Internet Message Access Protocol, to receive and manage the emails. After that, SSH protocol, which is used for secure remote login. Then DNS protocol, Domain Name System, Domain Name Server, and this is used for translating the domain names into IP. तो इस तरह से आपके पास कुछ ही प्रोटोकॉल्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, बट रेस्ट in the background we are having so many protocols which works like within the computer network. Now the main motive of this lecture, that is elements of protocol. Protocol ki like what is the need of protocol, and after that what are the elements of protocol, who actually helps the or gives the support to the protocol. So there are three elements. The first one is syntax, then semantics, and the third one is timing. देखिएगा, यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ प्रोटोकॉल में जब हम बात करते हैं सिंटेक्स की, द फर्स्ट वन इज सिंटेक्स। तो सिंटेक्स यहाँ पर कहता है कि व्हाट इज टू बी कम्युनिकेटेड, आपको कम्युनिकेट क्या करना है, किस तरीके से, मतलब व्हाट वुड बी द सिंटेक्स, इसकी रूपरेखा क्या होगी, right? And after that, semantics. Semantics means like whatever you have been planned, but how you could communicate, आप इसको करोगे कैसे, right? And the third one is timing, कि like अब आपने अगर प्लान कर लिया है फर्स्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड कह रहा है कि if you have decided like you would do like this, then third says what would be the timing and when it would be communicated. ऑलराइट, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। चलिए इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। सिंटेक्स को देखिए थोड़ा सा और यहाँ पर अच्छे से जानिए हम, सिंटेक्स का मतलब क्या है। सिंटेक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, द फॉर्मेट ऑफ डेटा, मतलब in which order data is presented. It also indicates how to read the data. It simply means the way to represent the data. राइट, यानी कि आपका सिंटेक्स क्या है मैसेज का। अगर आप एक सिंपल टेक्स्ट मैसेज भेज रहे हो तो व्हाट वुड बी द सिंटेक्स ऑफ इट। इफ यू आर सेंडिंग एनी वीडियो, then obviously you would be having one dedicated syntax for it. So it depends upon the message. कुछ इस तरीके से भी आप सिंटेक्स कह सकते हैं कि लाइक इट इज बेसिकली द स्ट्रक्चर and the format of data, like how the data is to be read, and it also indicates like how to read the bit, means let us suppose, आप देखिए यहाँ पर एग्जांपल देखिएगा, let us suppose आपके पास कोई मैसेज आपने भेजा है, तो लाइक अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो सिंटेक्स कहता है उसमें जो फर्स्ट फोर बिट है दैट वुड रिप्रेजेंट टू द सेंडर, वो किसको रिप्रेजेंट करेंगी, सेंडर को, लाइक टू whom और who is actually sending the data। जो आपकी लास्ट फोर बिट्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट करेंगी, रिसीवर को, मीन्स हु विल रिसीव द डेटा। देन द मिडिल बिट्स, मिडिल बिट्स का मतलब है यहाँ पर एक्चुअल मैसेज, ठीक है।
तो इस तरीके से आप सिंटेक्स को समझ सकते हैं. All right. Now the second element of protocols, that is semantics. अब semantics यहाँ पर क्या बता रहा है? Semantics का मतलब है कि like what is the control info? What is the action which you have been taken? क्योंकि आपने वही कहा था कि like how the data would be communicated. तो how का मतलब है आपने action क्या लिया, और अगर आपने action लिया है तो what actually the response. ठीक है, आप नोट कर लीजिए, यू जस्ट टेक वन पेन और पेपर एंड नोट डाउन द कीवर्ड्स. राइट, सिमेंटिक्स यहाँ पर क्या कह रहा है कि हाउ यू हैव कंप्लीटेड योर डेटा एंड हाउ यू हैव सेंड इट. ठीक है, एंड देन इट इज सेइंग like what kind of action you have been like taken place. ठीक है, एक्शन आपने क्या लिया है, आफ्टर दैट व्हाट टाइप ऑफ रिस्पॉन्स यू हैव गॉट. ठीक है, ये सब है सिमेंटिक्स का मतलब. चलिए इसको डिटेल में थोड़ा सा समझ लीजिए. इट बेसिकली रेफर्स टू द मीनिंग ऑफ ईच सेक्शन मेंशन इन द सिंटेक्स. मींस इट इंक्लूड्स कंट्रोल इंफॉर्मेशन. कंट्रोल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि कोऑर्डिनेट करते हुए जब आपने एक्चुअल में एक्शन वहां पर लिया उस मैसेज को सेंड करने का. राइट, तो जरूरी नहीं है कि एक ही बार में आपका मैसेज चला जाएगा. सो और ऐसा हो भी सकता है कि एक बार में आपका मैसेज चला जाए. राइट, तो वो सारी कंट्रोल इंफॉर्मेशन आती है आपकी सिमेंटिक्स के अंदर. आफ्टर दैट इफ एनी काइंड ऑफ एरर इज कमिंग, तो अगेन इन द सिमेंटिक्स इट वुड कम. देन एक्शन एंड रिस्पॉन्सेज. सो it also specifies कि which file defines which action. चलिए, now the third and the most important element, that is timing. आपने प्लान कर लिया इन द फर्स्ट एलिमेंट, दैट वाज सिंटेक्स. सेकंड में आपने यहाँ पर एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन करके देखा, मीन्स आपने एक्शन लिया, आपको रिस्पॉन्सेज मिले. देन द थर्ड वन इज टाइमिंग्स. राइट, टाइमिंग का सिंपली मतलब क्या है, व्हेन द डेटा इज टू बी सेंड, कि डेटा को कब भेजा गया है, हाउ फास्ट द डेटा कैन बी सेंड. And let us suppose sender sends the data at 100 mbps, but receiver is receiving the data at 1 mbps. So the data gets overflowed at the receiver end. ठीक है, इसमें कहने का मतलब क्या हो सकता है, आप कुछ इस तरीके से समझिएगा. टाइमिंग का मतलब है कि आपने जब डेटा को भेजा, ठीक है, और रिसीवर ने जब रिसीव किया, तो व्हाट वाज द एक्चुअल टाइमिंग, मतलब कितने टाइम में आपका मैसेज वहां पर पहुंचा है. राइट, वो है आपका टाइमिंग. चलिए इसको कुछ डिफरेंसेस के थ्रू भी आप समझ सकते हैं. वी आर हैविंग सम ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन दीज थ्री. तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा. यहाँ पे फर्स्ट जो पार्ट है दैट इज ऑफ मीनिंग. तो सिंटेक्स का मीनिंग है स्ट्रक्चर एंड द फॉर्मेट ऑफ डेटा. सिमेंटिक्स का मतलब है द मीनिंग ऑफ ईच फील्ड, मीन्स हाउ एक्चुअली इट वुड बी डन. टाइमिंग का मतलब है व्हेन एंड हाउ मच फास्ट इज टू बी डन. ओके, फोकस में हम कह सकते हैं कि सिंटेक्स किस पे फोकस करेगा, लाइक हाउ द डेटा लुक्स. सिमेंटिक्स किस पे फोकस करेगा कि व्हाट द डेटा मीन्स. टाइमिंग व्हेन डेटा इज टू बी ट्रांसमिटेड. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, बिकॉज पीछे भी हमने सेम डिस्कशन किया था अभी. अच्छा, अब यहाँ पर सिंटेक्स का सही मायनों में जो मतलब है वो ये है कि इन व्हाट फॉर्मेट, अगर आप कुछ कोई मैसेज भेजना चाह रहे हो तो फॉर्मेट क्या रहेगा. ठीक है, बिकॉज जब भी आप कोई भी काम करते हैं, लेट अस सपोज आपको कोई असाइनमेंट मिला है, लेट अस सपोज आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो ऑब्वियसली इन ईच एंड एवरी केस यू वुड हैव सम काइंड्स ऑफ फॉर्मेट, कि प्रोजेक्ट का फॉर्मेट ये है. राइट, आपको इस तरह से प्लान करना है. अगर आपको कोई असाइनमेंट यहाँ पर दिया जा रहा है तो यू हैव द फॉर्मेट फॉर दैट. ऑल राइट, तो सिंटेक्स का सीधा सीधा मतलब है फॉर्मेट से. सिमेंटिक्स कहता है व्हाट डज इट डू. राइट, होना कैसे है, लाइक प्रॉपर एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ इट. टाइमिंग कहता है कि टाइमिंग किस समय पर आप भेज रहे हैं और स्पीड क्या थी. अच्छा, सो सिंटेक्स जो है दैट इज कंसर्न विद हेडर साइज, फील्ड का ऑर्डर. सिमेंटिक्स इज कंसर्न अबाउट कंट्रोल इंफॉर्मेशन, एक्शन एंड रिस्पॉन्सेज, जो कि मैं बार बार आपको बताती आ रही हूँ. देन टाइमिंग कहता है कि स्पीड कितनी है, सीक्वेंस क्या रहेगा और सिंक्रोनाइजेशन कैसे हो रहा है. अच्छा, एग्जाम्पल से समझिए आप. लेट अस सपोज आपके पास फ्रेम है दैट इज ऑफ 16 विद एड्रेस. राइट, और 8 बिट क्या है, उसमें कंट्रोल फील्ड है.
तो सेमेंटिक्स कह रहा है कि आपने क्या किया, आपने एक्शन लिया, मतलब मैसेज भेजा गया, राइट, और वहां पर मैसेज जा चुका है। ठीक है, मैसेज पहुंचने के बाद आपको एक्नॉलेजमेंट मिल गया, राइट, मतलब आपने एक्शन लिया कि मैसेज इज ट्रांसमिटेड, राइट, और आपको बदले में रिस्पॉन्स क्या मिला? आपको मिला एक्नॉलेजमेंट कि यस आई हैव रिसीव्ड द डेटा, राइट। तो ये क्या था? एक्शन एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, टाइमिंग का मतलब है कि कितना टाइम लगा, लाइक सेंडर वेट्स फॉर हाउ मेनी मिनट्स और हाउ मेनी सेकेंड्स, ऑलराइट, मतलब फॉर 2 माइक्रो सेकेंड्स बिफोर द नेक्स्ट फ्रेम, या 4 माइक्रो सेकेंड्स बिफोर द नेक्स्ट फ्रेम, सो जस्ट लाइक दैट। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि हमारे प्रोटोकॉल्स क्या करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में, उनकी क्या नीड है, एंड व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ देम, after that the differences between all the three elements. So hope this is clear to everyone. So till then, thank you everyone, thank you so much.